What is mental well-being? Mental well-being is tapping into the power of your subconscious by mind programming through affirmations and visualization. Affirmation. Now, don't worry if you don't know what is affirmation and visualization. If you don't understand what is subconscious mind, what is mind programming, don't worry at all. I'm going to explain you everything. And trust me, these are magical tools. You directly talk to your sperm, you directly talk to your ova, you directly talk to your follicles, you directly talk to your progesterone, your endometrium lining, your tubes, your cervix, सबके साथ डायरेक्ट बात करते हो और डायरेक्ट बात करके उनको बताते हो कि आपको ऐसा होना है. दिस इज द वे, दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट, दिस इज द राइट बिहेवियर दैट यू नीड टू हैव. और जब आप इस तरह के एफर्मेशंस देते हो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और फिर विजुअलाइज करते हो कि बस वो उसी तरह से वर्क कर रहा है, it does wonders. It actually starts working like that. Like as I just shared with you, I had a lot of problems, lot of complications with my own pregnancy. I just share one example. My water levels in my 7th month, when I was pregnant with my son, like 10 years back, my water levels started going down. एकदम कम होने लगा. I was hospitalized for 10 days. और मेरे डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था that Sonal, we might operate you any time. हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा and you might have to undergo a premature delivery. Preterm premature delivery आपको होगी 7th month में. But I kept on. मेरा जो mental well-being, physical, emotional, spiritual well-being, जो मैं आपको सब अभी next 3 days में सिखाने वाली हूँ, वो सारी चीजों को मैंने फॉलो किया. And you will be amazed to know कि मेरे water levels बढ़ने लग गए. My doctor, who is the best doctor in the country, she was shocked. She was like, it's beyond medical understanding. Water levels, by and large, अगर कम होते हैं, तो that means there is some leakage somewhere, वो कम होते जाते हैं. At best, stagnant हो जाएंगे. But it can't increase. It is impossible to increase. But in my case, it was increasing. She was amazed because I was telling my water levels. I was telling my child in my womb that you've got enough water. You're swimming, you're playing, you're enjoying. My water levels are increasing. Everything is perfect, 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 perfect. And it was actually perfect. My doctor asked me, Sonal, tu kya kar rahi hai? Then I told her that I'm doing this, whatever my guru taught me. मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया था मैंने बताया. शी वाज लाइक, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो कर रही है करती जा, बिकॉज इट्स वर्किंग इन माय फेवर, यू आर डूइंग सुपर डुपर. एंड मैंने आराम से 1.5 महीना खींच लिया. 9th month में आई डिलीवर्ड माय सन. So what I mean to say is, your body listens to you. Your body listens to you. You have to tell your body that do this. You have to do this with lot of love, with lot of care, and it will respond to what you are saying. Now, how the mechanism works, I'll just tell you quickly. Now, working of the mind, how the mind works. Our mind is like a computer system. जैसे कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ना, थ्रू कीबोर्ड वी डू द इनपुट. In the CPU motherboard, the processing is happening and the output comes on the screen. Similarly, हमारे माइंड में इनपुट कहाँ से होता है? थ्रू द 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे ज्ञानेंद्रिय के थ्रू. आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन. ये जो 5 सेंसेस है जिसको हम ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं, उसके थ्रू हमें क्या होता है? इनपुट मिलता है. We collect the input from the environment, ear, eyes, nose, tongue and skin. And then the processing happens. जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में. वैसे हमारी प्रोसेसिंग होती है चतुष्टय अंतःकरण से. व्हाट इज चतुष्टय अंतःकरण? बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त. डोंट वरी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. आई विल एक्सप्लेन each of this very very deeply to you. मैं बिना एक्सप्लेन के कहीं जाने वाली नहीं. आई एम सिटिंग हियर ओनली टू एक्सप्लेन यू, राइट? सो डोंट वरी. सो चतुष्टय अंतःकरण इज बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त. ये चारों जो है वो प्रोसेस करता है. एंड देन फाइनली आउटपुट जो है कंप्यूटर का स्क्रीन पे दिखता है. और हमारा आउटपुट कैसे होता है? थ्रू लेग्स, हैंड्स, माउथ, एनस एंड जेनाइटल्स. इसके थ्रू आउटपुट होता है. सो देयर इज एन इनपुट थ्रू आवर 5 सेंसेस, आवर ज्ञानेंद्रिय.
processing happening through chatushtay antakaran and output happening through कर्मेंद्री, through these organs of action. इसके थ्रू हमारा आउटपुट होता है. So this is the working of the mind, the way our mind works. Now we very well understood the input and the output, but we need to deeply understand the processor, how our mind works. So processor को समझने के लिए हमें वो चतुष्टय अंतःकरण is a processor. So we need to understand what चतुष्टय अंतःकरण does. So चतुष्टय अंतःकरण क्या है? सबसे पहले बुद्धि. So what is बुद्धि? बुद्धि is our logical mind, जो क्या करता है? तर्क वितर्क करता है. लॉजिक, राइट और रॉन्ग, तर्क वितर्क, यस और नो, 0 and 1. वो क्या करता है? खाली डाइसेक्ट करता है. सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत. सो इट एक्ट्स लाइक अ नाइफ. इट एक्ट्स लाइक अ नाइफ. सो बुद्धि हमेशा चीर फाड़ करेगा, नाइफ की तरह डिसेक्ट करेगा चीजों को. अब ये नाइफ को चलाने के लिए एक हैंड चाहिए, राइट? सो हु इज द हैंड? द हैंड इज अहंकार. बुद्धि हमारा इंटेलेक्ट है और हैंड है हमारा अहंकार. तो ये अहंकार क्या करता है? ये अहंकार कहां से बना है? ये अहंकार हमारे इंप्रेशन से, हमारे संस्कार है जो हमको इस लाइफ से मिले हैं, माँ के गर्भ से मिले हैं, प्रीवियस लाइफ से मिले हैं, पता नहीं कहां से मिले हैं. और ये अहंकार क्या करता है? ये अहंकार हमारे आंख के ऊपर एक चश्मा चढ़ा देता है. बिकॉज हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी दुनिया है. हम दुनिया को कैसा देखते हैं? हम दुनिया को देखते हैं जैसा हमने चश्मा पहना हुआ है, हमारे जैसे संस्कार हैं. एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल, उसने आपके साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं किया, लेकिन किसी और के साथ अच्छा बिहेव किया. तो जब कोई और इंसान भी आपको अगर आके बोलेगा भाई ये तो अच्छा इंसान है, यू विल टोटली रिजेक्ट इट. यू विल से नो नो नो, माय एक्सपीरियंस डज नॉट से दैट. वो इंसान नहीं है अच्छा, ही इज नॉट दैट गुड, ही इज नॉट प्रॉपर, राइट? तो अहंकार क्या करता है? अहंकार हमें चश्मा पहना देता है. तो हम दुनिया को प्लेन नहीं देखते, हम दुनिया को एक कलर्ड ग्लास से देखते हैं. तो अब जो बुद्धि है, वो बुद्धि तो चाकू है, लेकिन वो चाकू का हाथ कौन है? अहंकार है. और ये जो अहंकार है, वो अहंकार क्या है? बायस्ड है. वो अहंकार प्रेजुडिस्ड है. वो अहंकार अपने संस्कारों पे चल रहा है. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये अहंकार जो है वो न्यूट्रल नहीं है. इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज कलर्ड. तो हमारे जो डिसीजंस हो रहे हैं, बुद्धि और अहंकार मिलके जो डिसीजन ले रहे हैं, वो न्यूट्रल होंगे कि कलर्ड होंगे? कैसे होंगे वो डिसीजन? वो कलर्ड होंगे. अगर मेरा फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया, तो जब मैं सेकंड अटेम्प्ट भी लूंगी ना, तो क्या होगा? मेरे इंप्रेशन में क्या है कि भाई फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया. सेकंड में भी मैं उसी को रिपीट करूंगी. मेरा एक बार मिसकैरेज होगा तो क्या होगा? मेरे दिमाग में मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया. सेकंड टाइम मैं वापस से मिसकैरेज की कंडीशंस को क्रिएट करूंगी. Why? Because in my mind, I'm replaying it. In my mind, I'm creating those kind of energies because of my sanskar. Because of my sanskar. इसलिए आप देखोगे किसी का मिसकैरेज होता है तो उसका मल्टीपल मिसकैरेज होता है. फेलियर होता है तो मल्टीपल फेलियर होता है. और एक बार सक्सेस मिल जाता है तो फिर सक्सेस ही सक्सेस मिलता है. Why? Because वो संस्कार वैसा सेट हो गया है. और अब ये बुद्धि और अहंकार मिलके जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, बिकॉज क्या होता है? हमारे 5 सेंसेस क्या करते हैं? 5 सेंसेस एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ये इंफॉर्मेशन जाता है हमारे बुद्धि के पास में. बुद्धि क्या करता है? अहंकार का हेल्प लेता है. बुद्धि अकेले वर्क नहीं करता, बुद्धि अहंकार का हेल्प लेता है. बिकॉज बुद्धि अगर नाइफ है तो अहंकार क्या? उसका हैंड है. तो बुद्धि को हैंड चाहिए, नाइफ को हैंड चाहिए टू वर्क प्रॉपरली. तो इट सीक्स हेल्प ऑफ अहंकार. लेकिन अहंकार क्या है? अहंकार बायस्ड है. तो नेचुरली
जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा होता है, वो बायस्ड रिजल्ट होता है। और ये बायस्ड रिजल्ट कहां जाता है, हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, हमारे माइंड में, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में जाता है। और फिर इसकी पूरी माइंड में प्रोसेसिंग होती है। एंड देन कम्स चित्त, which is our consciousness, which is a higher level mind. We'll talk about चित्त sometime later. फिर कभी जब और स्पिरिचुअलिटी की डीप सेशंस जब हम लेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ लोअर माइंड, which is बुद्धि, अहंकार एंड मनस. चित्त is a higher level mind, which we are not touching now. So अभी तक आपको पूरा क्लियर हो गया हाउ आर बुद्धि एंड अहंकार वर्क टुगेदर? Am I clear? If clear, then just give me a quick thumbs up so that I understand that you are with me. So बुद्धि एंड अहंकार दोनों मिलके प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एंड प्रोसेसिंग करके वो इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं. बट दैट इंफॉर्मेशन इज बायस्ड, दैट इंफॉर्मेशन इज कलर्ड. नाउ दिस बायस्ड कलर्ड इंफॉर्मेशन, where it goes to our mind. Which mind? Mind has got two parts, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is the logical mind. It is the logical mind, and it is the mind which we generally see. And subconscious mind is the mind which we don't see. जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, the tip of the iceberg, that's the conscious mind. But जो अंदर में जो ज्यादा पावरफुल है, 90% है, that's the subconscious mind. It is made up of our beliefs, our emotions, our habits, our values, our imaginations, our intuitions. And conscious mind is made of all logical critical thinking. It's short term memory, right? So ये हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है. अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड ये इंफॉर्मेशन को लेकर सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है. अब कॉन्शियस माइंड क्या है? वो बॉस है. सबकॉन्शियस माइंड क्या है? उसका सर्वेंट है. पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है, सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड इज सर्वेंट टू द कॉन्शियस माइंड, एंड इट इज अ वेरी लॉयल सर्वेंट. जैसा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कहता है, सबकॉन्शियस माइंड हूबहू वैसा ही काम करता है. इफ कॉन्शियस माइंड विल टेल सबकॉन्शियस माइंड दैट दिस इज नाइट, it is 1 a.m. in the night, subconscious mind will accept it. It is 1 a.m. in the night. It will never question. It will never question. But then it is very powerful. तो वो क्या करेगा? अपने अंदर उस मैसेज को ले लेगा. अब अगर कॉन्शियस माइंड ने अगर सबकॉन्शियस माइंड को कहा कि भाई मेरी फ्रेंड का भी आईवीएफ फेल हो गया था, मैंने देखा था आईवीएफ का सक्सेस रेट इज ओनली 30%, so I don't think this is going to work with me. तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कर लेगा? ले लेगा. This is not going to work with me. It does not work with anyone. It is not going to work with me also. और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? It will keep on repeating, not work, not work, not work, not work. It will keep on repeating until this belief becomes firmed, until this belief becomes pakka, until this belief becomes its habit. It has got an internal tape recorder system. It keeps on playing till you become like that. So क्या हो रहा है? Conscious mind बुद्धि और अहंकार को ट्रस्ट कर रहा है. ट्रस्ट करके जो भी वो भेज रहे हैं उसको वो फेस वैल्यू पे ले रहा है, और फेस वैल्यू पर लेके वो सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड इंटर्न कॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट कर रहा है, और जो सबकॉन्शियस माइंड ने भेजा वो उसको क्या कर रहा है? पक्का कर दे रहा है, उसको अपनी बिलीफ, इमोशन, हैबिट बना दे रहा है. एंड देन जैसे बोलते हैं नॉट वर्क, नॉट वर्क, नॉट वर्क, नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क. Somebody just asked me that can you explain us unexplained infertility? This is unexplained infertility, creation of your mind. कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकली सब परफेक्ट है, आपके ट्यूब परफेक्ट है, आपका ओवल्यूशन साइकिल परफेक्ट है, आपका सब कुछ परफेक्ट है, आपके हस्बैंड का सब ठीक है, आप लोग का बहुत लविंग रिलेशनशिप है, हर कुछ बहुत अच्छा है, but still nothing is working out. Why? This is unexplained infertility. It's all in the mind. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर आपको कहीं हुआ और आपने देखा, you don't know, it's in your subconscious, you have registered it,
And now that subconscious does not allow you to overcome it. It is so powerful. So mind is primarily divided in function as conscious mind and subconscious mind. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और वो जो चाहता है वो वैसा ही सोचता है. इट थिंक्स लाइक दैट ओनली. जो उसे दिया जाता है वो उसी को पक्का कर लेता है. तो वी नीड टू नाउ प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड कि जो उसे दिया जाए वो उसको पक्का नहीं करे, जो हम चाहते हैं वो उसको पक्का करे. तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड इन मच मोर डिटेल. सो सबसे पहले क्या, इट इज डायरेक्शनलेस. सबकॉन्शियस माइंड हैज गॉट नो डायरेक्शन. इट टोटली फॉलोज एंड ओबेज द ऑर्डर ऑफ कॉन्शियस माइंड. जो हुक्म मेरे आका, ही इज लाइक अ जिन. कैसा होता है जिन? वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. बट द जिन इज स्लेव टू हिज आका. जो आका बोलेगा जिन वही करेगा. राइट? So it is directionless. It triggers negative self-programming but not engaged. जब वो engaged नहीं होता है तो वो negative self-programming, self-destructive programming शुरू कर देता है. Because subconscious mind बहुत active है, चंचल है. I'll just share a story with you. एक बार एक आदमी था जिसने बहुत साधना की, बहुत तप किया, सब कुछ किया. ब्रह्मा जी आए. ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बेटा, जो चाहिए मांगो. तो उसने बोला कि मुझे एक जिन चाहिए जिसको मैं जो बोलूं बस वो करता जाए. तो ब्रह्मा जी बोले दे तो दूंगा मैं तुमको वो जिन, बट वो जिन की एक शर्त है, वो 1 सेकंड भी खाली नहीं रह सकता. उसको जैसे ही तुम खाली रखोगे वो क्या करेगा, वो तुम्हारे भक्षण करने आ जाएगा. तो आदमी बोला कि अरे मेरे पास बहुत काम है, वो खाली रह नहीं सकता, वो हमेशा ओवरलोडेड ही रहने वाला, प्लीज दे दो जिन मुझे. तो भगवान ने कहा कि ओके ले लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है. तो उसे जिन मिल गया. अब दिन शुरू हुआ, जिन आके खड़ा हुआ, आदमी ने काम बताया. जैसे ही काम बताया उसने काम खत्म नहीं किया, वो जिन वापस आ गया. बोला कि मैंने तो कर डाला. मतलब जो काम उसे लग रहा है इतनी देर लगेगी वो सेकंड सेकंड में करने लगा. अब आदमी परेशान होने लगा कि वो जितनी देर में सोचे कि काम करो उसके पहले तो काम करके आ जा रहा है. और जैसा कि शर्त था कि अगर उसे एंगेज नहीं किया जाएगा तो उसी को खाएगा. तब आदमी ने फिर एक तरकीब लगाई, एक डंडा गाड़ा और जिन को बोला कि ऐसी इंस्ट्रक्शन दी कि इन बिटवीन एनी वर्क, मैं जो काम तुमको बता रहा हूं और अगला काम जो बताऊंगा उसके बीच में अगर तुम्हारे पास समय रहेगा तो तुम इस डंडे से ऊपर चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना. तो फिर क्या हुआ, वो आदमी रिलैक्स हो गया कि भाई एक काम दिया, अब दूसरा काम देने में समय है, तो जब तक दूसरा काम मिलेगा तब तक जिन क्या करेगा, उस डंडे से ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा. तो ये जिन क्या है, ये जिन कुछ नहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है. ये जिन क्या करता है, ये जिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो जैसे हम उसको एंगेज नहीं रखते हैं कोई प्रोडक्टिव चीजों में, वो हमारा ही भक्षण करने आता है. कैसे भक्षण करता है? नेगेटिव प्रोग्रामिंग के द्वारा, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस के द्वारा, नेगेटिव चीजों के बारे में सोच के. तो हमको क्या करना है, इंटेलिजेंट बनना है. एक ऐसे डंडा हमें चाहिए जिसपे वो चढ़े उतरे, चढ़े उतरे. तो हमें क्या करना है, हमें उसे या तो अपने ब्रेथ के साथ या मंत्र के साथ, कोई चीज के साथ जोड़ देना है. जैसे हम अपने मन को कोई चीज के साथ जोड़ देते हैं हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है, और जैसे मन को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है. जैसे नेचर है ना, जमीन है, तो जमीन में अगर हम बीज बोएंगे तो क्या होगा, फसल उगेगी. अगर बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा, खरपतवार उग जाएंगे, बीज उग जाएंगे. तो वैसे ही अगर हम अपने मन को प्रॉपर थॉट प्रोसेसेस नहीं देंगे, प्रॉपर काम नहीं देंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव एंटिटीज आ जाएगी. सो इट हैज टू बी एंगेज्ड एट ऑल टाइम्स. प्लीज रिमेंबर दिस, योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल. इट इज वेरी वेरी चंचल and it needs to be engaged at all times. And that engagement can be with the help of mantras, that engagement can be with the help of some breath or whatever.
You need to decide what, but it needs to be engaged positively. There is no difference between fact or fiction. सबकॉन्शियस माइंड के लिए फैक्ट और फिक्शन, इमेजिनेशन और सच्चाई, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके लिए दोनों एक समान है. इट यूजेस द सेम न्यूरल पाथवे. हमारे माइंड में क्या है? न्यूरॉन्स है. वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं साइनेप्सिस के थ्रू, और जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वो पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, न्यूरल नेटवर्क. और ये न्यूरल नेटवर्क जब हम एक्चुअली काम करते हैं तो भी वैसे ही क्रिएट होता है, वैसे ही ट्रैवर्स होता है. और जब हम इमेजिन करते हैं तो भी वो वैसे ही ट्रैवर्स होता है. It traverses the same in the same way, same neural pathway is being created. और जितना न्यूरल पाथवे ट्रैवर्स होता है वो न्यूरल पाथवे उतना ही पावरफुल और एक्टिव होता जाता है. सो सबकॉन्शियस माइंड यूजेस द सेम न्यूरल पाथवे फॉर फैक्ट एज वेल एज फिक्शन. It uses for same situation. मुझे किसी ने डांटा, ये एक फैक्ट है, उसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हुआ. बट मैंने सोचा कि वो मुझे डांटेगा, या मैंने सोचा कि 10 साल पहले उसने मुझे डांटा था, तो क्या होगा? इट यूजेस द सेम न्यूरल पाथवे. इट इज एन इमेजिनेशन of some future, it is an imagination of some past. It is not something that is happening in the present moment. Whatever happens in the happening in the present moment is fact. Anything that is not happening in the present moment, either past or future, is fiction. So subconscious mind does not differentiate between fact or fiction, between past, present और future. किसी में कोई difference नहीं है subconscious mind को. नेक्स्ट, इट इज इमोशनल एंड सेंसरी. अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 4 दिन पहले क्या खाया था लंच में, कैन यू आंसर मी? वेरी डिफिकल्ट, सोचना पड़ेगा. कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, अच्छा शायद वो खाया था, और मे बी आप रॉन्ग भी बोलो. बट अगर मैं पूछूं 4 साल पहले अपने बर्थडे में क्या खाया था, आप बता दोगे? ऑफ कोर्स, आपकी हर बर्थडे आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है. अब बस 1 सेकंड आंख बंद करो और पूरे बर्थडे का वृतांत आपके सामने आ जाता है. व्हाई? बिकॉज योर बर्थडे इज वेरी इमोशनल फॉर यू. इट इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल डेज फॉर यू. यू रिमेंबर इट रियली 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 वेल. इट इज इमोशनल. एंड देन सो सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को बहुत जल्दी हैंडल करता है. इट रिमेंबर्स एनीथिंग विच इज इमोशनल इज रिमेंबर्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड. एंड सेंसरी, जो चीज को हम जितने सेंसेस को इन्वॉल्व करके करते हैं वो उतना ज्यादा हमें यूज में आता है, उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट अपॉन कर पाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बुक दूं और मैं आपको बोलूं कि आप पढ़िए, और वही बुक की अगर मैं आपको मूवी दिखाऊं तो क्या आपको ज्यादा याद रहेगा? ऑफ कोर्स मूवी. वाई? क्योंकि बुक में आपके सारे सेंस ऑर्गन्स नहीं इन्वॉल्व हुए, मूवी में आपके सारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए. तो आप जितने अपने सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना पावरफुली वर्क करता है. तो सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट और फिक्शन में नहीं डिफरेंशिएट करता है, वो इमोशनल है, वो सेंसरी है, एंड देन वो विजुअल है. अगर मैं आपको बोलूं कि आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था, तो क्या होगा? कुछ लिख के आ रहा है आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा है, कि पूरी ग्लिम्सेस आ रही है आपके फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज की, कि आप कैसे एंटर किए, कैसे आपको आपका पहला फ्रेंड मिला वहां पर, और किस तरह से हुई, और अगर रैगिंग हुई तो कैसे हुई, एंड ब्ला 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 ब्ला. राइट? तो इट वाज विजुअल. इट वाज विजुअल. So subconscious mind stores in the form of vision. It does not store in the form of letters or writing. It stores in the form of images. And next, it lives in the present moment. Subconscious mind lives in the present moment. It does not live in the past or the future. वो past को भी present में लेके आता है, future को भी present में लेके आता है. वो उसी तरह से उस सिचुएशन को फील करता है जैसे कि वो उस वक्त हो रहा हो. 10 साल पहले किसी ने आपको चांटा मारा था, और अभी आप आंख बंद करोगे
और उसके उस सिचुएशन के बारे में सोचोगे, तो आपको वही फीलिंग वापस से एक्टिवेट हो जाएगी जैसे उसने अभी आपको मारा हो। वही गुस्सा आपको आएगा, वही नाराजगी होगी, वही दुख होगा, वही आंसू निकलेंगे, वही बेचारापन फील होगा, राइट? Because subconscious mind lives in the present moment. So what are the characteristics of the subconscious mind? Next is, last is, does not understand no. अगर मैं आपको बोलूं पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना पिंक एलिफेंट के बारे में, तो क्या हो रहा है? पिंक एलिफेंट आपके माइंड में आ रहा है और फिर आप बोलो हो नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं बोलूं पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तो पिंक एलिफेंट ही आ रहा है। ये नहीं हो रहा है कि पिंक एलिफेंट सोच के अलग अलग कलर के एलिफेंट आ रहे हैं, नहीं, पिंक ही आ रहा है और फिर आप उसको हटा रहे हो। सो सबकॉन्शियस माइंड को नो वर्ड समझ नहीं आता। So what are the qualities of subconscious mind? It is directionless. It triggers negative self-programming when not engaged. No difference between fact or fiction. It is emotional. It is sensory. It is visual. It lives in the present moment, and it does not understand no or any doubt. So this is clear. Characteristics. Now we are going to use these characteristics to program our subconscious mind. So कैसे mind work कर रहा है? Let us quickly recap pictorially. Conscious mind collects stimuli from 5 senses. This gets processed under the guidelines of intellect and ego. ठीक है, ईगो और इंटेलेक्ट मिलके वो सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं और फिर ये इनपुट कहाँ भेजा जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में भेजा जाता है, जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स एंड इमेजेस, राइट? सो दिस इज द वे आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. Now we will move on to how we can program it. Steps to tap into your subconscious mind. हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर सकते हैं? तो अब क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड की कि वो कॉन्शियस माइंड का स्लेव है, वो उसका जिन है, और जो आका है वो अपने जिन को कभी छोड़ेगा नहीं, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से अलग करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू कुछ भी रूट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड किसकी गिरफ्त में है? वो ईगो और इंटेलेक्ट की गिरफ्त में है। और ईगो और इंटेलेक्ट जो है वो क्या करते हैं? हर चीज को बायस कर देते हैं, हर चीज में अपना कलर डाल देते हैं और सब काम गड़बड़ कर देते हैं. सो वी हैव टू बाईपास the conscious mind, we have to bypass our ego, we have to bypass the intellect, and we have to directly work with subconscious mind. Understand what we have to do. हमको subconscious mind के साथ directly work करना, हमको बाकी सब चीज को bypass कर देना है. तो हम कैसे bypass करेंगे? अब हमारा जो brain है ना, वो different modes में work करता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा. तो अल्फा मोड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का मोड है, जो अल्फा फ्रीक्वेंसी है वो सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी है, और बीटा फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी है. अल्फा फ्रीक्वेंसी इज लोअर फ्रीक्वेंसी, एकदम शांत, बिल्कुल शांत. दी एनर्जी पैटर्न्स आर वेरी सेटल्ड ओवर हियर. और बीटा क्या है? बीटा इज द सांसारिक फ्रीक्वेंसी, दुम दुम दुम, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है. और अल्फा क्या है? मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है. सो सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एट द मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्शियस माइंड वर्क्स एट द वर्ल्डली फ्रीक्वेंसी. तो हमें क्या करना है? हमें मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है, बिकॉज मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी पे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक टीवी चैनल है, अब टीवी में स्टार प्लस भी है और टीवी में क्या बोलूं, सोनी टेलीविजन भी है. स्टार प्लस भी और सोनी टेलीविजन भी है, हिस्ट्री भी है और डिस्कवरी भी है, सारे चैनल्स हैं. अब सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो जो चैनल आपको देखना, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को, अगर उस बटन को दबाओगे तो उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके वो चैनल चालू होगा. राइट और रॉन्ग? क्लियर? सिमिलरली कॉन्शियस माइंड की अलग फ्रीक्वेंसी है, सबकॉन्शियस माइंड की अलग फ्रीक्वेंसी है. तो अगर मेरे को कॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगी?
कॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी वाला बटन। और जैसे ही मैं कॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी वाला, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी वाला बटन, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्फा फ्रीक्वेंसी। तो हम अल्फा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगे। जैसे ही हम अल्फा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेंगे, हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर देंगे, इधर उधर हटा देंगे, बाईपास कर देंगे, और हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे। और घुस के हमको जो प्रोग्रामिंग करनी है सारी प्रोग्रामिंग कर डालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? गेट इनटू अल्फा मोड। तो अल्फा मोड इज द मेडिटेटिव मोड। तो कैसे हम अल्फा मोड में जा सकते हैं? थ्रू ब्रेथ वर्क। आवर माइंड एंड आवर ब्रेथ इज टोटली लिंक्ड। हम जैसे ही अपने ब्रेथ को डीप करते हैं, जितना डीप अपना ब्रेथ करते हैं, हमारा माइंड उतना रिलैक्स होता है, और माइंड जितना रिलैक्स होता है वो उतना अल्फा मोड में जाता है। सो वी नीड टू either get into breath work or meditation. Meditation takes into alpha mode. We need to get into some relaxation, some silence, or we need to get connected with some mantras. तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो क्या होता है? अल्फा मोड में चले जाते हैं। अब हम ये सब कैसे करेंगे? ये सब हम इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग डे आफ्टर टुमारो विल लर्न हाउ टू डू इट. I receive couple of questions ki how to connect with breath and all those stuff. We'll do everything. We'll do on day 3. Right now you just understand कि हम अल्फा मोड में हम जा रहे हैं थ्रू ब्रेथ वर्क, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रिलैक्सेशन, थ्रू मंत्रा चैंटिंग, थ्रू साइलेंस. हम ये सारे हमारे पास टूल्स हैं, इंटरवेंशंस है, जिनको यूज करके हम अल्फा फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. जैसे हम अल्फा फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर देते हैं और हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं. जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? विजुअलाइजेशन. सबकॉन्शियस माइंड में घुस के हम विजुअलाइज कर रहे हैं. क्या? सपोज मेरे डॉक्टर कह रही है कि मेरा फॉलिकल्स बराबर नहीं बन रहा है, तो मैं विजुअलाइज करूंगी आईज क्लोज करके कि भाई मेरी ओवरी है, ओवरी को बहुत अच्छे से ओवरी का फोटो देखूंगी. I'll feel my ovary. I'll feel all the follicles inside. I'll see how the primordial follicle is converting into primary. Primary is converting into secondary. फिर सेकेंडरी के बाद कैसे जीएनआरएच हार्मोन्स एफएसएच को रिलीज कर रहा है, एफएसएच कैसे एस्ट्रोजन को फिर रिलीज करता है, फिर उसके बाद कैसे एलएच में एवोल्यूशन होता है, और इस तरह से पूरे प्रोसेस को मैं आंख बंद करके विजुअलाइज करती हूँ. Are you understanding what I'm saying? और ये विजुअलाइजेशन जो है, ये सिर्फ ऐसे नहीं करूंगी, ये विजुअलाइजेशन को करूंगी मैं 5 सेंसेस के साथ, 5 सेंसेस के साथ फील करके करूंगी, पूरे इमोशंस के साथ करूंगी. जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड इस सेंसरी, जितने इमोशंस, जितने सेंसेस डाऊंगी उतना अच्छा. तो मैं उसको देखूंगी, उसको फील करूंगी, उसको सुनूंगी, हार्मोनल के सर्च की जो आवाज है, जो सब चीजें हैं उसे फील करूंगी. वो पूरे एनवायरनमेंट को मैं 5 सेंसेस से पूरा फील करने की कोशिश करूंगी, और बहुत इमोशंस लेके आऊंगी. लॉट ऑफ लव टू द फॉलिकल, टू ऑल दोज हॉर्मोन्स, बिकॉज इसी से अल्टीमेटली मेरा बेबी बनेगा. बहुत लव. और इस प्रोसेस में पूरा ट्रस्ट और कमिटमेंट रहेगा मेरा. विथ फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट आई विल हैंडल दिस प्रोसेस, बिकॉज subconscious mind does not understand no. Subconscious mind does not understand any doubt. The moment I start doubting, my whole process will fail. मैं अल्फा मोड से वापस बीटा मोड में आ जाऊंगी. आई एम आउट ऑफ द डोमेन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सो मेरे को पूरा ट्रस्ट चाहिए कि यस, लॉजिक माइंड को तब हटा दो. अरे कि तुम्हें सोचने से क्या होगा, फॉलिकल अपने आप बड़ा हो जाएगा क्या, वाटर लेवल्स क्या बढ़ने लग जाएंगे? बढ़ने लग जाएंगे, मेरे बड़े हैं भाई, मेरे बड़े हैं. और भी बहुत सारी कहानियां 3 दिन में सुनाऊंगी, अपनी सारी कहानियां. मिराकल्स हुए, मिराकल्स. तभी तो आपको बता रही हूं, आप भी कर सकते हो. अगर मैं कर सकती हूँ मिराकल, तो आप भी कर सकते हो मिराकल. बट उसके लिए ट्रस्ट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो. तो इस तरह से आप माइंड मैपिंग करो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंशिएट नहीं करता. तो अब जितना इमेजिन करोगे अपने माइंड में अपने फॉलिकल की ग्रोथ को, प्रोजेस्टेरॉन को, सब चीजों को, सेंसेस सेंसरी होके, इमोशनल होके, ट्रस्ट के साथ, कमिटमेंट के साथ, वो उतने आपके न्यूरल पाथवे को पक्का करता जाएगा, पक्का करता जाएगा, पक्का करता जाएगा. और जब एक्चुअल में फॉलिकल को उस तरह से ग्रो होना होगा, रप्चर होना होगा, फर्टिलाइज होना होगा, इम्प्लांट होना होगा, वो वैसे ही होगा. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो
You have to visualize this entire process. And then you have to do deliberate mind programming by affirmations. ये विजुलाइज करना है और ये सब बातें अपनी फॉलिकल्स को, अपने हार्मोन्स को बोलनी भी है कि भाई माई, और व्हाट आर एफर्मेशंस? एफर्मेशंस आर रूल्स. इसके कुछ रूल्स है, एफर्मेशन के कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दो रूल्स. इट हैज टू बी पर्सनल. वो सिर्फ आपके लिए हो सकता है, आप अपनी फ्रेंड के फॉलिकल के लिए नहीं कर सकते हो. इट हैज टू बी इन प्रेजेंट टेंस ओनली बिकॉज subconscious mind lives in the present moment. It has to be positive because subconscious mind does not understand no. It has to be only about you. There should not be any comparison because your subconscious mind is your subconscious mind. It has got nothing to do with anybody else. So no comparisons. And it has to be very, very powerful, full of emotion because your subconscious mind is very, very emotional. So these are the affirmation rules. अब इस affirmation rules को लेकर आप affirmations बनाओ और बोलो अपने subconscious mind से. अब बोलो कि भाई my follicles are growing really well. जो आपके डॉक्टर ने जो साइज बोला है, बोले उतने मिलीमीटर का हो गया है. मेरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग 5.5 मिलीमीटर की हो गई है और मेरा इस दिन मेरा सर्ज हो रहा है, LH बढ़ रहा है और इस तरह से एग निकल. आप affirmations दो that my endometrium lining is 5.5 millimeter. On 15th of September 2022, my ovulation is happening. On 20th of September 2002, the embryo is implanted. On this date, I have my pregnancy is confirmed. My endometrium lining is very healthy. जो भी आपके कंसर्न्स है, उस कंसर्न्स का पॉजिटिव एफर्मेशन बना के आप अपने उस बॉडी पार्ट को बोलो, उसको विजुअलाइज करो और विजुअलाइज करने के टाइम पे आप उसको बोलते जाओ. तो क्या स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का? सबसे पहले अल्फा मोड में जाना है ताकि आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओ. फिर आपको पूरा विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करने के टाइम पे आपको एफर्मेशंस के साथ वो सारी बातें बोलते जानी है. जैसे आप ये सब करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा रीप्रोग्राम हो जाएगा और जैसे ही वो रीप्रोग्राम होगा, यू अचीव मिरेकल. यू अचीव मिरेकल. डॉक्टर भी अमेज्ड हो जाएंगे कि भाई कभी मेडिकल हिस्ट्री में वाटर लेवल्स बढ़ते ही नहीं है, कैसे बढ़े तेरे, कैसे बढ़े तेरे. अब मुझे नहीं मालूम कैसे बढ़े, जैसे बढ़े वैसे बढ़ाती जा. सब कोई डॉक्टर अभी, I don't know whether she's there in the session or not. A week back, there was a lady who was pregnant. There was a lot of complication with her pregnancy. डॉक्टर लिटरली बोल दिया था प्रेगनेंसी रहने वाली नहीं. उसकी इतनी ब्लीडिंग की क्या बताऊं. हर ब्लीडिंग में लग रहा है कि बस अब तो निकल गया, पूरा का पूरा यूट्रस ही निकल गया, इतनी ब्लीडिंग. बट उसकी पूरी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई. शी स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल दीज टेक्निक्स, मंत्रा चैंटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें उसने फॉलो करनी शुरू की. उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई, हर चीज बंद हो गया. उसकी डॉक्टर शॉक हो गई कि भाई सब कुछ, देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी इंटरनल ब्लीडिंग इनसाइड, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर परफेक्ट. ऐसे मल्टीपल स्टोरीज है मेरे पास जो एवरीडे होते हैं हमारे ग्रुप में. पीपल कीप शेयरिंग, दे कीप कॉलिंग, दे आर सो हैप्पी, दे कॉल, दे शेयर. So it's happening with everyone. So if it's happening with everyone, then why will it not happen with you? You just need to follow the right tools, right? So this was about subconscious mind. Now this last slide, don't forget, सबसे पहले you need to have a pure and burning desire. Your desire to become a mother and mother of a divine child should be very, very high. यहाँ पे मैं सिर्फ conception की बात नहीं कर रही हूँ. I am talking about divine conception. So your desire should be very, very, very high. अगर वो desire high नहीं होगा ना, आपके emotions high नहीं होंगे. अगर आपके emotions high नहीं होंगे तो कुछ work नहीं करेगा. Then there should be an immediate action plan. You should have an action plan कि भाई how I need to go about it. If I need to consult a doctor or if I need to check on my ovulation, if I need to do anything, whatever, your action plan has to be there in place. क्योंकि सिर्फ विजुअलाइज करने से और एफर्मेशन देने से कुछ नहीं होगा. अगर आपके बॉडी में स्पर्म ही नहीं गया है, ओवाई प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कुछ ही नहीं हुआ है, तो अब जितना भी विजुअलाइज कर लो, इम्प्लांटेशन हो गई, ये हो गई, होगा क्या? कभी नहीं होगा.
विजुअलाइजेशन विल हेल्प जो आप रियलिटी में कर रहे हो उसको, तो आपको रियलिटी में तो करना ही पड़ेगा ना. यू हैव टू फॉलो द एंटायर साइकिल एंड डू इट प्रॉपरली. तो वंस यू डू इट प्रॉपरली, देन योर विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू टू अचीव इट, राइट? सो यू नीड टू हैव एन इमीडिएट एक्शन प्लान. कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड. जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड एनी डाउट. You need to have a doubtless mind. There should not be any plan B कि अगर ये नहीं होगा तो मैं वो कर लूंगी. बिल्कुल नहीं. होना है तो होना है, मेरा इसी साइकिल में होगा. कैसे नहीं होगा? I'll achieve it. जब तक ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये फेथ नहीं होगा, ये ट्रस्ट नहीं होगा, तो कुछ अचीव नहीं हो सकता है. फिर तो क्या, चार लोग आपको चार बातें बोलते रहेंगे, आप भटकते रहोगे, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड will also not listen to you because you are not trusting your subconscious. And finally, be detached. अब दही को आप जमाने रखते हो तो उसको रहने देते हो ना, कि हर एक सेकंड में जाके उंगली डाल डाल के देखते हो जमी की नहीं, जमी की नहीं, जमी की नहीं, जमी की नहीं. Similarly, what you're doing is absolutely divine, absolutely perfect. Just relax. 15-20 दिन बाद रिजल्ट आएगा. अब आप हर मिनट सोचोगे, अरे हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो क्या होगा? कॉर्टिसोल्स एमिट होंगे. वो कॉर्टिसोल क्या करेंगे? प्रोजेस्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेंगे. प्रोजेस्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग गड़बड़ होगी. एंडोमेट्रियम लाइनिंग गड़बड़ होगी तो क्या होगा? जो इम्प्लांटेशन हुआ वो डिस्टर्ब होगा. तो आप प्रेग्नेंट हो रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने बार बार ये टेंशन रखा, हो रही नहीं हो रही, क्या हो रहा, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, इतना प्रॉब्लम, कि जो होने वाला काम था वो भी बिगड़ गया. फिर आप बोलोगे अरे क्यों नहीं हुआ? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, राइट? सो बी डिटैच्ड, ट्रस्ट योरसेल्फ. सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा, राइट? सो गेट रेडी टू इन्वोक the child of your dreams. So today was a very beautiful day. We did a very long session of almost 2.5 hours. Thank you so much to all of you who stayed throughout. It was really nice of you. कि आपने सब समझा. We understood the entire mechanism going on in our body, and we also understood कि हम mentally कैसे उस mechanism को activate कर सकते हैं. So I gave you such amazing tools to work upon. Now it is on to you to start implementing. So let the divine journey continue. Chat box में WhatsApp group link share हुए होंगे. In case you want to join our group, you can join, where we can continuously exchange ideas and help each other. These are my links for Facebook, Twitter, and WhatsApp. Phone number in case you want to get in touch, and email address, website, so you can maybe click a picture of this for future reference.